आसनसोल के बाद अब महानगर कोलकाता में चिट फंड स्कैम का एक और मामला सामने आया है, जिसने सैकड़ों परिवारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एसएल मल्टी मार्ट ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी, जिसका ऑफिस चिनार पार्क इलाके में स्थित है, ने लोगों से लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। ये रकम एक फर्जी निवेश और मार्केटिंग योजना के माध्यम से वसूली गई। आरोप है कि कंपनी के निदेशक सुवदीप परिया के नेतृत्व में कंपनी के दैनिक मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्य वर्गीय परिवारों को ऊंचे मासिक रिटर्न्स, बोनस और कमीशन का लालच देकर अपनी जमा पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक चरण में कंपनी ने जनता का विश्वास जीतने के लिए कुछ छोटी रकमें वापस की, लेकिन दिसंबर 2024 तक सभी भुगतान अचानक बंद हो गए। जब पीड़ित लोग कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वे बंद और खाली मिला। तब से कंपनी के निदेशक फरार हैं। इस धोखाधड़ी ने न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों पर गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात भी छोड़ा है। इसी केस में कंकन विश्वास, उम्र 43, विशेष उल्लेख के पात्र हैं। वे स्टेज 3 कैंसर से पीड़ित हैं और उन्होंने अपने इलाज व परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए अपनी सारी जमा पूंजी निवेश की थी। आज वे इस धोखाधड़ी के कारण पूरी तरह असहाय हो गए हैं और अपने इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ितों की ओर से मगराहट पुलिस स्टेशन और बागुईहाटी पुलिस स्टेशन में कई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस की इस चुप्पी और निष्क्रियता ने पीड़ितों को न्यायिक हस्तक्षेप की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित संस्थाओं से जांच की मांग की गई है। अब देखना यह है कि क्या इस स्कैम में अपना लाखों रुपए गंवाने वाले सैकड़ों पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या उन्हें भी इंसाफ का इंतजार ही रहेगा। আমার নাম প্রীতম সর্দার। কোথায় থাকো? বাড়ি হচ্ছে কি ঝিমকিরহাট। এই তো মোটা দূর থেকে তুমি এই কোম্পানি খোলাতে কি করেছিলে? কত টাকা এখন মতো দিয়েছো? আমার নিজের 18 লাখ টাকা ইনভেস্ট ছিল। তো আমি 2023 আগস্ট মাসে ঢুকেছিলাম। তো ওই যে কোম্পানি শুভদীপ এই হেমকান্তি গুড়িয়া ছিল না, পুরো এদের সাথে পলাশ সর্দারের সাথে যোগাযোগ ছিল। তো ওইভাবে এসেছিল আমাদের এখানে, আসতে ও বললো যে এইভাবে করো, করলে এত টাকা পাবে। তো এবার লোন ফোন নিয়ে করেছিলাম, লোভে করেছিলাম যে বেশি টাকা পাবো, এই জন্য বলেছিল যে 6 মাসে টাকা রিটার্ন করে দেবো। তা কি করে বুঝবো? ওরা বলছে যে মানে ফরেক্স ট্রেড, মানে ফরেক্স ট্রেড। ক্যাশ টাকা দিয়েছিলে? হ্যাঁ, ক্যাশ টাকা দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, প্রথমবার কত টাকা দিয়েছিলে? প্রথমবারে 5 লাখ দিয়েছিলাম। তারপরে 5 লাখ টাকা দিয়ে কত টাকা রিটার্ন পেয়েছো? 5 লাখ টাকা দিয়ে আমার 6 মাস দিয়েছিল, মানে আসল টাকাটা এসেছিল। 5 লাখ টাকা ওটা রিটার্ন চলে এসেছে। হ্যাঁ, আবার তারপরে কত টাকা? তারপরে আবার হচ্ছে যে আবার 10 লাখ দিয়েছিলাম। কত টাকা ইনভেস্ট করেছেন আপনি? আমি 1 লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করি, 1,08,000। কি বলে এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে? নিজের টিমের আরো 16-18 লাখ টাকা আছে আমার আন্ডারে। মানে চেন বাই সিস্টেম। আমি ওই বালাইপুর লাইনে একই পাড়ায় বাড়ি। আপনি এই কোম্পানির নামটা কি করে শুনলেন? এসএল মাল্টিমার্ট আমাদের পলাশ দা এনেছিল এই কোম্পানিটা। মানে ফেসবুকে দেখেছিলেন, কি মাধ্যমে দেখেছিলেন? পলাশ দা ফার্স্ট এনেছিল, পলাশ দা। হেমকান্তি গুড়িয়া আছে না, ডাইরেক্টর আছে। ছবিটা দেখা, এনার নামটা কি? হেমকান্তি গুড়িয়া। হেমকান্তি গুড়িয়া। হ্যাঁ, ইনি হচ্ছে কোথায় থাকে? ইনি আমতলা থাকে। এর মাধ্যমে কি আপনার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ? হ্যাঁ, এর মাধ্যমে কোম্পানি, এর মাধ্যমে। আচ্ছা দাদা, এবার এদিকে আসো। এখনো পর্যন্ত কত টাকা টার্নওভার হয়েছে টোটাল? আমার হাত দিয়ে জমা পড়েছে 3 লাখ টাকা। আমার নিজের 3,36,000 টাকা। তার থেকে আমি মাত্র 1 লাখ টাকার মতো পেয়েছি। আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এর আগে রোজভ্যালি থেকে শুরু করে সারদা এত কিছু হয়েছে, তারপরে কম বেশি টাকা আমার আসলে এই যে আমার প্রেসক্রিপশন, আমি ক্যান্সারের পেশেন্ট, আমি ব্রেন ক্যান্সারের পেশেন্ট। আমার এখন অনেক টাকা প্রয়োজন। দেখলাম যে এখান থেকে ক্যান্সার পেশেন্ট ছিলেন, এই যে তারপরে আপনারা কি করে একটা কোম্পানিকে দিলেন? আপনি কি চেক করেছিলেন এটা রেজিস্টার্ড কোম্পানি? তখন আমি যখন কিনা বারবার বলা হচ্ছে, তখন দেখেছিলাম যে সবাই টাকা পাচ্ছে, সেই আশাতে আমি দিয়েছিলাম। প্রথম টাকা দিচ্ছিল। হ্যাঁ, 6 মাস টাকা দিয়েছি, 6 মাস টাকা दिए তারপর আর দেয়নি। मामला आपको तो अभी लोगों ने बताया ही है कि उन लोग पैसे के लालच में पैसा इन्वेस्ट किए कि हर 1 लाख रुपए में 15,000 रुपए उनको मिलेगा महीना में।
इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो भी आप बोलिए। तो लोग जो डेली काम काज करते हैं, ये लोग तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब ये लोग बाकी पैसा इधर उधर से लेकर पैसा इन्वेस्ट किए इस लालच में कि पैसा मिलेगा। अब ये लोग सब भाग गए। अब इन बहुत 300 से ऊपर लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो अभी ये लोग आपका जो लोकल और पुलिस स्टेशन है जो इनका जुडिशन पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने एफआईआर के लिए भी मांग की, बट पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब हम लोग लास्ट में PIL फाइल किए हाई कोर्ट में, एंड इट इज पेंडिंग ओवर देयर, एंड वी आर प्रेइंग फॉर पुलिस एफआईआर। ये मामला कब आया आपके पास? ये मेरे पास मामला है जुलाई 2025। वी आर प्रेइंग फॉर पुलिस एफआईआर, दैट इज ओनली आवर डिमांड। हम लोग चाहते हैं पुलिस इसमें एक्शन ले, CBI इंक्वायरी करे। यही आप जो कल्पित के बारे में कह रहे, क्या अभी वो आउटस्टैंडिंग है? वो आपके कोलकाता में फ्रीली घूम रहे हैं। देयर इज नो एक्शन टेकन बाय पुलिस और द कंसर्न अथॉरिटी, दैट इज व्हाई ऑफिस को ओपन किया है, दूसरा ऑफिस। ये भी एक आपका विक्टिम है, इनसे बात करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुकांत है। तो सर आपका भी क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें? हाँ, हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट है। हमारा मिनिमम 25 से 28 लाख का बर्बाद हो गया, चुना हो गया है। आपने प्रथम बार में कितना पैसा दिया? प्रथम बार में हम लोग दिया था 5 लाख का। कितना रिटर्न मिला? इतना रिटर्न जो मिला है आधा मिला है। उसके बाद फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे कुछ आदमी को लेके और पूरा बर्बाद हो चुका है। और ये पलाश मेरा रिश्तेदार है और इस सिलसिले में वो लोग हमसे पैसा लिया था। बाकी हमलाकारी ऊपर मेरे ऊपर जो लोग पैसा उठाया था, अरे जो पलाश से पैसा लिया था, तो वो रिश्तेदार बोल के मेरे ऊपर हमला किया है। मेरे ऊपर हमला के मेरा घर पर सब तोड़ डाला है, बारीपुर। नहीं, ये तो पलाश लेके आया है ना, हम लोग कुछ पता नहीं है। रिलेटिव से रिलेटिव, जैसे LIC बनता है ना, तो रिलेटिव से रिलेटिव आता है, इसलिए हुआ है। रोज वैली और भी आदमी गलत इतना कुछ होने का आदमी है ना, उसका सजा भुगत रहा है ना, भूल किया है ना उसका। हाँ, ये लोगों को मेन जो मकसद है ना, गांव वाला से टोपी पहने के ये लोग पैसे उठाता है, आधा पैसा देता है, और मान लीजिए आपसे 50 रुपया वो लिया है, पहले 50 रुपया आपको दे दिया है, और बाद में अगर मान लीजिए 100 रुपया उठाया तो वो भाग जाएगा। ऐसे ही हुआ है, ये स्कैम था। हम चाहे ये पुलिस लोग की इन्वॉल्वमेंट हो और इसका तदारकी करे, छानबीन करे। हम लोगों को जो वकील है केस किया है, इसका थोड़ा कुछ सुराग मिले, गांव वाला लोगों जो बर्बाद हुआ है कुछ सुराग मिले। देखिए, पुलिस प्रशासन ये सब के इनका तो गलती है। इनको जब विक्टिम गया बागुईहाटी थाना, उन्होंने FIR रजिस्टर लिया नहीं। उन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है, जो विक्टिम है, जो वहाँ पे जो कनिकन विश्वास है, उनको बागुईहाटी थाना में 2 घंटा बैठा के रखा और FIR रजिस्टर्ड नहीं लिया गया, बल्कि उनके पास पूरा एविडेंस था। तो हम चाहते यही है कि हम लोग यही चाहते हैं पुलिस FIR रजिस्टर्ड ले, और अगर वो क्यों नहीं लिया, वो इग्नोर किया है, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, पुलिस के ऊपर जो FIR रजिस्टर्ड नहीं किया। और हम लोग का ये भी एक डिमांड है कि इसमें CBI इंक्वायरी हो, ED इंक्वायरी हो, SIT इन्वॉल्व हो। आपको क्या लग रहा है कि अभी तक जो जुलाई से केस आया, तो अभी तक किसी किस्म का कोई FIR दर्ज नहीं, कोई भी तरह का FIR नहीं हुआ है। हम लोग PIL मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट में फाइल कर चुके हैं। कल हियरिंग होगा तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। काफी इन्फ्लुएंशियल है हमारा ये जो केस है। पहला बात, PIL मैटर जो भी होता है जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है, पर हमारा ये जो PIL मैटर है कलकत्ता हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो चुका है। अब हमारा यही डिमांड है कि हमारा मैटर पहले CBI का इंक्वायरी इसमें होना चाहिए, ED का इंक्वायरी होना चाहिए, और सबसे बड़ा बात इसमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो मैटर है, ये जो कंपनी रजिस्टर्ड क्या हुआ, वो NCLT के द्वारा या कंपनी एक्ट के द्वारा सही रजिस्टर्ड है या नहीं। इसमें सेबी का भी वायोलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी से पैसा ये पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करे, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस मैटर में सेबी का भी रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन है। तो सारा जो भी ट्राइब्यूनल से सब इस पे केयर करना चाहिए और मैटर को बहुत वास्ट करना चाहिए। हमारा यही पहला डिमांड है कोर्ट से। बताइए, ये अभी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? अभी ये लोग रन कर रहे हैं राजरहाट पुलिस स्टेशन, प्रफुल्ला कानन, नॉर्थ 24 परगना, राजरहाट। इसी जगह पे अभी भी हाँ, ये चल रहा है, ये न्यू कंपनी है।
तो अभी आप लोगों को फाइनली कितने लोगों को ठगा गया इसमें, इस स्कैम में? इसमें more than 300 है। 500 300 कितना रुपए का अमाउंट का पूरा फ्रॉड हुआ? अभी 200 करोड़ 200 approximately or more than that. हाँ more or less 200 करोड़ more or less yes more than So finally what मतलब आप लोगों को हमारा यही है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए और इसके जितने भी विक्टिम्स है सबको इसके पैसा इनको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो भी है ये लोग लोन लेके सब गरीब है, कुछ थोड़े से स्कीम थोड़ा प्रॉफिट के बहाने ये लोग गरीब इंसान है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इन लोगों को ठग दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट का ये कोर्ट का हक बनता है कि इनका पैसा इनको वापस मिले और इसमें मैटर इंक्वायरी हो, इसका हमारा यही डिमांड है। যার ঘর ভাড়া দিয়ে নিয়েছিল উনি, ওনার টাকা ঘর ভাড়া বাকি রাখেনি, সেটা বলে চলে উনি এখন আসে আমাদের সঙ্গে। মানে হ্যাঁ হ্যাঁ সে এখন এখানে আছে হ্যাঁ, এখানে আছে। কোথায় তো নিচেই আছে। এখান থেকে মানে কয়েকশো কোটি টাকা স্ক্যাম হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এখানে যে প্রথমে যেটা জিজ্ঞেস করবো, আপনারা এই দাবিতে এই অবস্থান নিয়েছেন, ঠিক আছে, কি ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি, মানে কিভাবে প্রতারণার শিকার হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি এই কোম্পানির যে ডাইরেক্টর ছিল এসএল মাল্টিমার গ্লোবাল মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির নাম, ঠিক আছে। তো কোম্পানির যে ডাইরেক্টর ছিল, এমডি ছিল, ডাইরেক্টরের বাড়ি হলো আমতলাতে, ঠিক আছে। তো আমতলা স্কুলে ওনার ছেলে অ্যাডমিশন করিয়েছিল, তার সঙ্গে আমার ওয়াইফের পরিচয় হয়, যার ফলে ওরা মানে এই কোম্পানির সম্বন্ধে বলে এবং সেখানে ইনভেস্ট করার জন্য বলে, সেখানে সেইভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, মানে মাসে 15% ইন্টারেস্ট দেওয়ার কথা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। আজকে এখানে কয়েকশো কোটি টাকা দিয়েছি আমরা 8 কোটি টাকা আছে। না না, আমার সমস্ত আমি এজেন্ট ছিলাম। গড়পড়টা ধরেন 2-3 লাখ করে, গড়পড়টা 3 লাখ করে করা আছে, ঠিক আছে। প্রায় 500 জন লোকের টাকা এখানে উঠানো হয়েছিল। এটা কতদিন ধরে চলছে চক্রটা? এটা চলছে আমরা 2020 থেকে। 2020 থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এখানে প্রথম অফিস কোথায় ছিল? প্রথম অফিস দমদম ছিল, সেটা আমি জানতাম না, আমি 2023 থেকে জয়েন করেছি। 2023 এ জয়েন করেছেন, এখন 2025 চলছে, এই 2 বছর আপনি কোনো প্রফিট করেছেন? হ্যাঁ, প্রফিট দিয়েছি। আমি দিয়েছিলাম 8 কোটি থেকে 10 কোটি টাকা, সেখান থেকে আমাকে বাকি টাকা রিটার্ন করে আর হাফ মানে প্রায় 4 কোটি টাকা এখনো, 4 থেকে 5 কোটি টাকা এখনো দেয়নি, পালিয়ে গেছে কোম্পানি। এখানে সমস্ত যত লোক আছে আমার সব মানে এজেন্সি। পলিসি কি ছিল? মান্থলি ইনভেস্ট করলে মান্থলি 15% করে পাওয়া যেত, 1 লাখ লাখে 15% করে মান্থলি পাওয়া যেত। হ্যাঁ, কত বছর আপনি যতদিন টাকা রাখবেন ততদিন ওখান থেকে পাওয়া যেত, 6 মাসে ডবল আর কি। আচ্ছা, পুলিশি প্রশাসনের তরফ থেকে তোমরা কোনো রকম মানে এখনো পর্যন্ত কোনো অভিযোগ করেছো? হ্যাঁ, আমরা অভিযোগ করেছি, এমন খুব হাইকোর্টে কেস চলছে। আচ্ছা, এই অফিস কতদিন আগে এসেছিল? এই অফিসে 5 মাস 6 মাস আগে এসেছিলাম। এখানে যোগাযোগ করে কি বুঝলো? এখানে তো কোম্পানি লক আউট করে চলে গেছে, আর অন্য কোন নতুন একটা কোম্পানি খুলেছে, ভিডিওএস মাল্টিডেট প্রাইভেট লিমিটেড। হ্যাঁ, কোম্পানির নাম কি? ভিডিওএস মাল্টিডেট প্রাইভেট লিমিটেড এখন নতুন কোম্পানির নাম হয়েছে। এর প্রধান কর্মধারী মূল চক্রী তার নাম শুভদীপ পাড়িয়া, হ্যাঁ, বাড়ি হলো নন্দিকা। আমি মাসে আমার যেটুকু প্রাপ্য, আমি যেটা ইনভেস্ট করেছিলাম সেটা তার বেনিফিটটাই পাচ্ছিলাম না। আমি স্যালারির মধ্যে আমি আমার ইনভেস্ট করেছিলাম না, কমিশন ছিল। আমি কি যে এখন মূল দাবি কি সবার? আমার মূল দাবি আমাদের সমস্ত লোকের টাকা ফেরত দিতে হবে, এবং আমার নিজস্ব ইনভেস্ট প্রায় 50 লাখের কাছে ইনভেস্ট ছিল, ঠিক আছে। আমার নাম পলাশ সর্দার। मैं 2023 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मेरा नाम कंगन विश्वास है। मैं 2024 में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। मैं 3 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें तब मेरे को बोला था हर महीने 15% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 6 महीने देने के बाद वो आज कुछ नहीं दे रहा है। और मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, इसलिए मैं कुछ ज्यादा रुपया मिलेगा ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था। ये है मेरा कैंसर का पेपर्स, ये है मेरा कैंसर का पेपर्स है। मेडिकल कॉलेज में मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। मैं मांगता हूँ जो मेरा जो रुपया है उन लोगों के पास वो वापस कर दें।